Hello, guys. Welcome to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. So, as you're aware, that we're working on an AI series where we are learning AI from very scratch, right? And today is a brand new episode of the series, which is on types of agents. So, in previous episodes, we learned about what AI is, how an AI model operates in an environment. So, which is basically an agent and how it operates in different types of environment. And what different types of environment was already uh, taught you in the previous episode. So, today we would be talking about different types of agents. Now, before moving forward into the video, I would request you all to please hit the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss any update from Mindful Minutes. So, before moving forward to the topic, different types of agents, I would first like to brief you all about what agents were, right? So, क्या हमने पढ़ा था agents के बारे में, just उसका एक brief देने के लिए, I would first let you know that that what agents were. So, in एक एजेंट एआई के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि सेंस और परसीव कर सकता है एनवायरनमेंट को थ्रू सेंसर्स और डिसीजंस ले सकता है या एक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट पे थ्रू एक्चुएटर्स, राइट? सो इनके पास मेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि नॉलेज, बिलीव एंड इंटेंशंस. सो we could say anything, or an agent can operate in an environment, perceive the environment through sensors, and take decisions or act upon the environment through actuators or effectors to achieve a goal. Right now, agent could be anyone. Agent could be a human, agent could be a robot, or agent could be anything, right? Who could perceive the environment and take the action upon it. Now, in AI, there are five different types of agents that we would be talking about. So, first is simple reflex agents, then there is model based reflex agent, then there is goal based agent, utility based agent, and learning agents. I would be explaining each of them in detail to you. So, let's move into it. So, first is simple reflex agents. So, basically, simple reflex agents are those agents that take the decision based on the current perspective. They ignore the perceived history. So, in this type of agent, they do not care about what the history was or what the past was. They only care about is the current scenario. So these agents basically only succeed in a fully observed environment. Now you would be asking about what fully observed environment is. For that, I would request you to view the types of environment episode. You would get a clear picture about various types of environment, right? So ये जो type के agents होते हैं, they work on a action condition action rule, which means they map the current state of action. So whatever is the current state, their action would be perceived on that. They do not care about what the past was or what the future will be, right? Now these types of agents have some problems, right? The problem which with these type of agents are that they have very limited intelligence. So they do not have a mind of their own. They do not learn from the information they are fed with. So these types of agents have very limited intelligence. Secondly, they have no knowledge or about the non-perceptual part of the current state. Non-perceptual part means कि they do not care about what the future will be. They do not care about what the past is. They only care about what the current perspective is, what the current scenario of the environment is, right? Thirdly, they are too big to generate and store. Right. So why they say that they are too big to generate and store? The reason behind it is, see, now as we are aware that these types of agents do not have the mind of their own. They are not learning with the limited memory that they are given with. So in these types of agent, if we want them to do multiple tasks, we need to put up a lot of data into them, and it make the system bigger, right? It made the human or a robot bigger to store, right? Now lastly, it says that not adaptive to change in the environment. No adaptive to change in the environment, मतलब कि these, as I already told you, कि ये जो
एजेंट्स होते हैं इनके पास बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है, तो ये अडेप्ट नहीं कर पाते कोई भी चेंज अगर हमारे इन्वायरमेंट में आता है। अब अगर मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं, राइट, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है एक रूम क्लीनर एजेंट। ये जो एक रूम क्लीनर एजेंट होता है, जब ये कोई डर्ट देखेगा ये उस पर काम करने लग जाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे जो मैट है उस पे जो डर्ट है वो लाइक परमानेंट है, वो नहीं हटेगी। बट ये चीज एक रूम क्लीनिंग एजेंट को नहीं पता, जिसके पास लिमिटेड मेमोरी है, जिसके अंदर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, उनको ये चीज नहीं पता होगी। तो वो क्या करेगा, वो उस पर रगड़ी जाएगा रगड़ी जाएगा रगड़ी जाएगा, राइट। एंड अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो दैट इज ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर। ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर्स जो होते हैं बेसिकली जैसे ही उन्होंने मोशन डिटेक्ट करा वो ड्रायर को ऑन कर देते हैं, राइट। अब मोशन में वो ये नहीं देखते कि हैंड ही है या कुछ एक पर्टिकुलर चीज ही है, जैसे ही कोई मोशन हुआ द ड्रायर गेट्स ऑन, राइट। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के की ट्रेट्स ये होते हैं कि दे डू देयर इज नो रिलेशन और दे डू नॉट केयर अबाउट what the past experiences were, and they also do not care about what the future consequences or the what the future planning is। उनको सिर्फ करंट सिचुएशन से फर्क पड़ता है, राइट। Coming to next type of agent, which is a goal based reflex agents. Now if I talk about the goal based reflex agents, they work in a partially observable environment and track the situation। partially observable environment क्या होता है, प्लीज आप प्रीवियस एपिसोड पे जाके समझ सकते हैं कि partially observable environment क्या होता है। ये टाइप का जो एजेंट होता है, दे केयर अबाउट पास्ट क्या था, दे केयर अबाउट हिस्ट्री क्या थी, जो कि इनको हेल्प करता है कि ये ट्रैक कर सके सिचुएशन एक एजेंट की, राइट। अब ये जो टाइप ऑफ मॉडल है, लाइक ये जो टाइप ऑफ एजेंट्स हैं, इसके अंदर दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है मॉडल। मॉडल क्या है, ये एक नॉलेज है, एक नॉलेज बेस है जो हमें ये बताता है कि हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, कैसे चीजें एक वर्ल्ड के अंदर चलती हैं, इसीलिए हम इसको मॉडल बेस्ड एजेंट कहते हैं। दूसरा आता है इंटरनल स्टेट। जो इंटरनल स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है करंट स्टेट क्या होगी एजेंट की बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। तो जब मॉडल को, जब एक एआई एजेंट को मॉडल के थ्रू पता है कि ऐसे ऐसे काम होता है, तो ही इज अवेयर अबाउट क्या हिस्ट्री होती है, कैसे सिनेरियोस काम करते हैं, राइट। और जो इंटरनल स्टेट है वो उसी मॉडल को समझकर, वो उसी नॉलेज को समझकर अपना करंट पर्सपेक्टिव, अपनी करंट स्टेट को चूज करती है, राइट। तो इसी यही रीजन है कि हम इनको बोलते हैं कि एक मॉडल बेस्ड एजेंट है, जहाँ पे मॉडल इज द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। तो जब भी एक रोबोट को या एक एजेंट को अपडेट करनी होती है अपनी करंट स्टेट को, तो उसको दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पहली कि हाउ द वर्ल्ड मूव्स, या कैसे वर्ल्ड इवॉल्व करता है, और दूसरा कि कैसे उस एजेंट के एक्शंस अफेक्ट करेंगे वर्ल्ड को, राइट। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, तो इसको हम एग्जांपल में हम ले सकते हैं रूम रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स। तो ये बेसिकली ये रिमेंबर करते हैं कि विच रूम्स आर क्लीन एंड वेयर द ऑब्स्टेकल्स आर। तो उनको पता होता है, दे नो अबाउट द मैप ऑफ योर हाउस, उनको पता है घर का नक्शा, पता है कि कौन सा रूम कैसे क्लीन करना है, कौन सा रूम क्लीन हो चुका है, कौन से जगह जगह पे मेरे को चेयर मिल सकती है, कौन कौन सी जगह पे बैठ के मैं नीचे नहीं जा सकता। सो दीज टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर बेसिकली अवेयर अबाउट व्हाट द हिस्ट्री इज, और व्हाट or how the world actually works, right? Now, next types of agents are goal-based agents. Now, goal-based agent basically expand करता है capabilities model-based agents की। Model-based agents जो थे वो अपने current decisions या अपने current actions परसीव कर रहे थे हिस्ट्री के थ्रू। हिस्ट्री को समझकर वो अपना करंट एक्शन डिसाइड करते थे। लेकिन जो गोल बेस्ड एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमें हिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें गोल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारा गोल है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। अगर हमें ये पता होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो उससे हमें हेल्प होगी कि हम अपने एक्शंस को उन्हीं तरीके से प्लान करें, राइट। सो बेसिकली गोल बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं ये कंसिडर करते हैं एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस बिफोर ये डिसाइड करें वेदर जो गोल है वो अचीव होगा या नहीं होगा। ये कंसिडर करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज, कैसे कैसे डिफरेंट सिनेरियोज को डिसाइड करते हैं थ्रू सर्चिंग एंड प्लानिंग, जो हेल्प करता है एजेंट्स को कि वो प्रोएक्टिवली डिसीजन ले सकें, राइट। तो इस टाइप्स ऑफ एजेंट्स के अंदर करंट नॉलेज होनी
कंपल्सरी नहीं है कि करंट स्टेज की नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है। यू शुड बी अवेयर अबाउट हिस्ट्री क्या है एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट कि क्या गोल है आप लोगों का अचीव करने के लिए, राइट। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स इज अ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। जो एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है उसमें हम अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, राइट। अब उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए जो हमारा जीपीएस है वो हमें मल्टीपल वेज बताते हैं कि आप इस वे से भी जा सकते हो, आप इस वे से भी जा सकते हो, आप इस वे से भी जा सकते हो, राइट। तो डिफरेंट वेज आपको बताए जाते हैं और वो कैसे बताए जाते हैं, थ्रू सर्चिंग एंड प्लानिंग, राइट। तो उनको पता है कि उनका गोल ये है और उनको इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, इवन दो वो आपको मल्टीपल वेज बताएगा, बट द ओनली पाथ दैट द गूगल मैप विल सजेस्ट वुड बी द दैट पार्ट जो कम टाइम देगा, जो कम टाइम में आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सो गोल बेस्ड एजेंट्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि हमारे लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है गोल। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल क्या है, मेरा काम सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। सो इसके अंदर अगर मैं की ट्रेड्स की बात करूं तो इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है, प्लानिंग के थ्रू ही वो डिसीजन लेता है, और दूसरा ये इवेल्युएट करता है कि फ्यूचर का आउटकम क्या होगा। तो फ्यूचर आउटकम भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। अगर मैं बात करती हूँ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, ये एजेंट्स जो हैं ये सिमिलर हैं गोल बेस्ड एजेंट्स के थ्रू, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी मेजरमेंट, जो कि इसको गोल बेस्ड एजेंट से डिफरेंट बनाता है। कैसे? क्योंकि जो यूटिलिटी मेजरमेंट टूल है या एक कंपोनेंट है यूटिलिटी मेजरमेंट, ये जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक मेजर ऑफ सक्सेस एट अ गिवन स्टेट। वो ये बताता है कि अगर जिस स्टेट में मैं अभी हूँ मैं कितने इजीली सक्सेस अचीव कर सकती हूँ, उस स्टेट से कितना टाइम मुझे लगेगा सक्सेस अचीव करने में, ठीक है। तो जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं एक्ट बेस्ड नॉट ओनली गोल बट द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। ये सिर्फ इस पे नहीं काम करते कि हमें गोल अचीव करना है, ये इस पे भी काम करते हैं कि क्या एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है, क्या एक बेस्ट सोल्यूशन है उस गोल को अचीव करने का, ठीक है। जो यूटिलिटी फंक्शन मैप्स each state to a real number to check how effectively each action achieves the goal। तो ये क्या करता है, ये मैप करता है हर एक स्टेट को एक रियल नंबर से, और फिर अफेक्टिवली डिसाइड करता है कि हमें कितना टाइम लग सकता है एक पर्टिकुलर करंट स्टेट से गोल स्टेट में जाने के लिए। तो जिस भी रास्ते के थ्रू मुझे सबसे कम टाइम लगेगा मैं उसी रास्ते को ऑप्ट कर लूंगी, राइट। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं वेयर मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, जहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, और जो एजेंट है वो चूज कर सकता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बेस्ट एक्शन। बेस्ट एक्शन डिसाइड करने के लिए उसको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स देते हैं और वो उसमें से डिसाइड करता है। नाउ अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करते हैं, वो मैक्सिमाइज करते हैं यूजर की सेटिस्फैक्शन प्लस सेल्स। तो बेसिकली वो ये भी ध्यान रखते हैं कि यूजर ने बोला कि मुझे सपोज एक हेयर ड्रायर लेना है, तो वो क्या करेंगे, वो ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूजर को सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगी, वो कैसे चूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा खरीदा हुआ प्रोडक्ट होगा, राइट। जिससे क्या होगा, कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी और यूजर को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो ये कहता है कि मैं टू वे काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि मेरा गोल अचीव हो जाए, मैं इसलिए भी काम करता हूँ जिससे जो एक बंदा है जो मेरे को यूटिलाइज कर रहा है वो फुल्ली सेटिस्फाइड भी हो, राइट। इसका एक और एग्जांपल दूं तो दैट इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं वो बैलेंस करती हैं सेफ्टी, स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी और कंफर्ट को। तो ये सब चीज़ों को वो एक बैलेंस मेंटेन करके हमें एक पॉसिबल पाथ बताते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर लर्निंग एजेंट्स। In AI, these types of agents can learn from its past experiences or it has a learning capability. So ये टाइप जो एजेंट होता है ये सिंपल रिफ्लेक्स से टोटली ऑपोजिट टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स को क्या करते हैं, ये अपने पास एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। सो अगर मैं इसमें मिनिमल मिनिमल इंफॉर्मेशन भी डाल दूं देन ऑल्सो दे कुड लर्न फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, दे लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स, दे लर्न थ्रू देयर अचीवमेंट्स, और फिर वो एक्शन भी परफॉर्म करते हैं अगर कोई उनको एक नया सिनेरियो दे दिया जाए, राइट।
नाउ ये स्टार्ट करते हैं टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट एंड अडेप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग। वही मैंने आपको बोला मिनिमल नॉलेज। तो ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक नॉलेज के साथ, बट क्योंकि ये एक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली अपडेट अडेप्ट करते हैं थ्रू अपने इन्वायरमेंट के अंदर, कैसे, लर्निंग से, तो ये हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो जो लर्निंग एजेंट्स होते हैं ये are capable of learning, analyzing performance, and look for new ways to improve the performance। तो ये सिर्फ इसी चीज पे नहीं बैठते कि भाई मुझे ये काम करना है या ये काम बस हो जाए, बस उसके बाद खत्म, बट ये क्या करते हैं, ये सीखते भी हैं उसके साथ। सो इट्स जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वी जस्ट ग्रैप्स द थ्योरी, ठीक है, हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि प्रैक्टिकल देख लेंगे, राइट। बट ये लोग क्या करते हैं कि थ्योरी जो इनको मिल रही है वो तो देखते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सो दैट दे कुड लर्न गुडली, दे कुड लर्न मोर एफिशिएंटली, राइट। नाउ ये जो टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते हैं इनके चार कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है लर्निंग एलिमेंट। जो लर्निंग एलिमेंट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ताकि फॉर इम्प्रूव मेकिंग इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो लर्निंग एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी आसपास की इन्वायरमेंट को परसीव करके जो भी इम्प्रूवमेंट एक एजेंट के अंदर वो लाना चाहे वो ला सके, लर्न करके, राइट। तो वही सीख कर, पनिशमेंट्स के थ्रू या रिवॉर्ड्स के थ्रू, राइट। सेकंड आता है क्रिटिक। क्रिटिक बेसिकली जो लर्निंग एलिमेंट है वो फीडबैक लेता है क्रिटिक से, जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ लॉन्ग और हाउ वेल द एजेंट हैज परफॉर्म्ड, या कितने अच्छे से जो एजेंट है उसकी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द सिस्टम, क्या उसकी फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, ये सब उसको फीडबैक के थ्रू मिलता है, किससे, क्रिटिक से, राइट। फिर आता है तुम्हारा परफॉर्मेंस एजेंट। परफॉर्मेंस एजेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सिलेक्ट करे करेक्ट करेक्ट एक्सटर्नल एक्शन, वो सिलेक्ट करे कि कौन सा एक्शन उसको एक्सटर्नली शो अप करना है। तो वो परफॉर्मेंस एजेंट डिसाइड करता है कि भाई अगर तू ये करेगा तभी तो अपना गोल अचीव कर पाएगा या तभी तो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज प्रॉब्लम जनरेटर। जो प्रॉब्लम जनरेटर एलिमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल, ये जो कंपोनेंट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट वुड लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। ये बेसिकली अननोन अननोन सिनेरियोज या अनऑब्जर्व्ड सिनेरियोज जनरेट करता है, जिससे कि जो हमारा लर्निंग एजेंट है वो और अच्छे से चीजें समझ पाए और उस पर एक्ट कर पाए, राइट। नाउ अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, सो वी हैव अ स्पैम ईमेल फिल्टर। जो स्पैम ईमेल फिल्टर होता है वो लर्न करता है फ्रॉम यूजर मार्किंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट, ठीक है। वो यूजर से डिसाइड करता है, जैसे यूजर है वो डिसाइड कर लेता है ना कि ये स्पैम है या ये स्पैम नहीं है, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो ये स्पैम ईमेल फिल्टर होता है ये भी समझने लग जाता है, राइट। या फिर आपका नेटफ्लिक्स और यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये यूजर की जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं या जो हम वॉच कर चुके हैं हिस्ट्री, हमारी वो हिस्ट्री को परसीव करके हमें नए रिकमेंडेशंस देता है, राइट। सो वो लर्न करता है फ्रॉम यूजर वॉच हिस्ट्री, राइट। सो ये थे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। आई बिलीव दैट आप लोगों को समझ आया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर। अगर आपको कोई भी डाउट है और how did you like the video, you could drop down into the comment section so that I could take your feedback and learn through it just like a learning agent. And कोई भी doubt हो so feel free to comment down and I'll reach you out accordingly. So thank you, meet you in the next one.